Once again, welcome to all of you. My name is Ashish Garg, and today we are going to continue our last topic that is from our previous class, that is deflection of beam. In the previous class, we have seen the top 5 questions that are usually asked in the GATE examination or IES examination. So, in the continuation of previous lecture, we are going to cover our next 5 questions under Avengers 10 program, in which we see mainly the top 10 questions which is usually asked in the previous year. So the last question, the fifth question in our last class is this question, in which I have told you we have given a simply supported beam and a uniformly distributed load of 24 kN per meter, and you have been asked what is the reaction, you have been asked what is the deflection at the center for which all the three reaction will become equal. This reaction, if I say RA, this is RB, and if this is C, then RA equals to RB equals to RC is required for what deflection? That is our question. For what deflection we will have RA equals to RB equals to RC, and we have seen what is the how we are going to solve this question. Similar to that question, this was our fifth question. Similar to that question, I have one more question in mind. You know, we have given a probed cantilever, but a simply supported beam is also applied at the probed end. If this is W, this is length L, and this is L by 2 inclined length. If this is A, this is B, C and D. You have to find out the RB value. आपको निकालनी है RB value. So what is the major difference here from this probed cantilever support? This probed cantilever support. If this is the, if EI is also given to us, here also we have given EI. Now here we can calculate reaction, and the formula here is 3/8 times of W into L. ये आपको याद करना है, ये आपको याद होना भी चाहिए. But here, because of simply support structure, we will have some deflection. हमें यहाँ पर कुछ deflection मिलेगी, हमें उसको consider करके चलना है. तो आपको जो लोड के कारण deflection आएगी, deflection due to uniformly distributed load, आपको माइनस करना पड़ेगा deflection due to simply supported load. एंड आप इसको कैसे करोगे? आप ऐसे इसको दिखा सकते हो. इफ यू हैव दिस, here we have a reaction R and here we have a reaction R. This is our simply supported condition. Corresponding to that, आपको डेल्टा जो बीम में है वो कंसिडर करके चलना है. ये डेल्टा किसके corresponding है? ये R के corresponding. ये डेल्टा R लिख लीजिए आप. इसको सोल्व करोगे जब आप, तब आपको यहां से R की वैल्यू मिलेगी. तो ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. कंटिन्यू करते हैं आज का मेन डिस्कशन हमारे सिक्स क्वेश्चन से. आज हम मेनली जो मेथड्स हैं डिफ्लेक्शन के, उनसे क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, या फिर मकॉलीज मेथड, या फिर हमारा मोमेंट एरिया मेथड, कंजुगेट बीम मेथड और एनर्जी मेथड. So we will see mainly question from these areas, which is usually asked in the previous year. एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए. मकॉलीज मेथड जो है, मकॉलीज मेथड आप कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं? Where you cannot apply Macaulay's method. Like we can apply there is some limitation of some methods. There are some limitation of method. Think about that, where we cannot apply Macaulay's method. And Macaulay's method is based on, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, Macaulay's method is based on, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये हमारा बनेगा सिक्स्थ क्वेश्चन. लेकिन जनरली मैं आपसे पूछता हूँ अभी, Macaulay's method is based on, it is based on, ऑप्शन देता हूँ आपको मैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए. It is based on
our A is double integration method. Second option is conjugate beam method. Third option is moment area method. And fourth option is none of the above. आसान क्वेश्चन है, कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए मुझे। अब बात करते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की। हम सबसे पहले कवर करेंगे सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चन रिलेटेड टू मोमेंट एरिया थ्योरम। सिक्स्थ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोमेंट एरिया थ्योरम है। मैंने इस पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस को क्लब कर दिया है मोमेंट एरिया थ्योरम से, जो यूजुअली रेगुलरली पूछे गए हैं। थोड़ा बहुत चेंज है, देयर इज सम चेंज बिकॉज ऑफ सपोर्ट कंडीशन और लोडिंग। आप सपोर्ट कंडीशन और लोडिंग जब चेंज कर देते हो तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन कंसिडर करके ही ये आपको कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो यूजुअली बार बार पूछे गए हैं। If you have given here moment, here also moment M, if this is point A and this is B, L is given to you and E and I are also given to you. Now what you have to do, you have to find the deflection at the center of the beam. That is our C point. If say we have to find the deflection at the center of the beam. तो हम इसको मोमेंट एरिया थ्योरम से कर सकते हैं बड़े इजीली, या फिर आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। लेकिन डबल इंटीग्रेशन मेथड वहां यूज करना चाहिए जहां पर आपके पास ऑप्शन ना हो। जैसे यूवीएल में यदि आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है लाइक इन दिस कैंटिलीवर, तो आप यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। आप mx निकाल लीजिए और फिर यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है d²y/dx² डिवाइड बाई इक्वल्स टू m/ei। तो इस फॉर्मूले से आप m को पुट कीजिए mx को और वहां से इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये मेनली सुटेबल रहता है कहां पर, जहां पर आपको लोडिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो, या फिर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में जैसे यदि आपके पास ये यूवीएल है तो आप यहाँ पर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एट x डिस्टेंस आप mx की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां पर सुटेबल रहता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है हमारा कर्वेचर ऑफ द बीम। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफ्लेक्शन गिव्स अस कर्वेचर ऑफ द बीम। एक्चुअली कर्वेचर होता है हमारा जो वो उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये पार्ट जो है कैंसिल कर देते हैं, मतलब इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्लोप की वैल्यू बहुत कम होती है। तो आप इस पार्ट को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के आप कर्वेचर को डायरेक्टली ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कर्वेचर से क्या रिलेशन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी से भी है, पूछ लेता हूँ आपसे। इजी क्वेश्चन है, आपको गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम और आपको बोला गया है कि ड्यू टू दिस बीम श्रिंक्स, आपकी ये बीम जो है श्रिंक करती है बीम बिकॉज ऑफ चेंज इन द मॉइस्चर कंडीशन। तो जब बीम श्रिंक करेगी तो आपकी ये कुछ ऐसी आपकी शेप जो होगी वो ऐसी एक्वायर करेगी। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 1/r की वैल्यू दैट इज 0.004 पर मीटर। और आपको निकालना क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट बता देता हूँ। यह है लेंथ गिवन है अपने को 10 मीटर, लेंथ इज गिवन टू अस एज 10 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। दिस इज द कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है आपको यहाँ का गिवन है, तो मतलब आपका कहीं रेडियस इधर होगा। यदि मैं रेडियस दिखाऊं तो ये आपका रेडियस होगा और 1/r की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो आपसे इस पार्ट से कर्वेचर से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप इसको
यदि कंप्लीट सर्कल कंसिडर करते हैं तो आपको पता है ये रेडियस r है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, इफ वी टेक दिस डिस्टेंस एज दिस इज अवर रेडियस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा इसको इरेज करके दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास कर्वेचर गिवन है, तो यहां से जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे, जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, तो ये आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये क्या डिस्टेंस है r, और ये भी क्या है r, एंड वी नो दिस डिस्टेंस एज 5 मीटर एंड 5 मीटर। वी कैन राइट 2r minus delta into delta, this is our 2r minus delta, this distance, and this is delta equals to l by 2 into l by 2, and we know if we solve this further 2r delta minus delta square equals to l square by 4. We can neglect the value of delta square, क्योंकि आप एक स्मॉल टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर वो डिक्रीज कर जाएगी, तो आप इसको निगलेक्ट करके चल सकते हो। तो यहाँ से आप डेल्टा निकालोगे एल स्क्वायर बाई 8r, आपको एल भी गिवन है 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 8r, आर भी गिवन है डेट इज 1 बाई 0.004। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपना क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आते हैं मेन क्वेश्चन पे। आज के हम बात कर रहे थे मोमेंट एरिया थ्योरम से डबल इंटीग्रेशन पर पहुंच गए। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने आपको यहीं पर शेयर कर दिया। मोमेंट एरिया थ्योरम से हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, डिफ्लेक्शन निकालना है एट द सेंटर पॉइंट। तो आपको पता है मोमेंट एरिया थ्योरम में डिफ्लेक्टेड शेप इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे वो कुछ ऐसी आएगी। आप यदि इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे कुछ ऐसी आएगी, क्योंकि ये मोमेंट इसको इस तरफ देगा और ये इस तरफ देगा, तो बीम ऐसे बैंड होगी जिसके कारण आपको डिफ्लेक्टेड शेप ऐसी मिलेगी। इफ दिस इज डेल्टा सी, देन अकॉर्डिंग टू अवर सेकंड थ्योरम ऑफ मोर्स सेकंड थ्योरम से हमें पता है, हमें क्या पता है, इफ वी ड्रॉ if C is point, if we draw a tangent at point C and take a moment, if we draw a tangent at C and we take a area of moment diagram between A and C, and area of that moment diagram, if we take area of that moment diagram about point O, that will gives us value of deflection। कैसे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा elaborate करके। हमारा इसका मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट है, हेयर सैगिंग हो रही है, सैगिंग के कारण आपको पॉजिटिव मूवमेंट मिल रहा है, तो m बाई EI डायग्राम आपको मिल गया। तो इस डायग्राम से हमें क्या करना है, दिस इज आवर एरिया, हमने क्या किया यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस डिस्टेंस इज आवर TAC। TAC क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट द लोकेशन, डिफ्लेक्शन एट the location of a when tangent drawn at C, when tangent drawn at C। तो हम मूवमेंट भी किसके अबाउट लेंगे, एरिया का एट पॉइंट A, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन अबाउट पॉइंट A। तो आपका इसका मूवमेंट कितना आएगा, मूवमेंट यदि निकालोगे इस एरिया का मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, if this is A and C, this will give us m by EI into L by 2 into L by 4. This is our lever arm L by 4. This will provide us ml square by 8EI, ml square by 8EI। तो आपका डिफ्लेक्शन एट C की वैल्यू क्या होगी, दिस इज अवर आंसर। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर आपको लोडिंग में मोमेंट गिवन था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, उसमें एक ये बीम गिवन है आपको, सिंपली स्पोर्टेड बीम गिवन है, जिसमें आपको लोड गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ L by 3 फ्रॉम ईच एंड, L by 3 फ्रॉम ईच एंड, टोटल लेंथ इज L, so this is given to us and we have given E and I also। Again you have been asked about the deflection at point C। फाइंड क्या करना आपको, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। तो ये क्वेश्चन भी मोमेंट एरिया थ्योरम से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली इसका आप डायग्राम बना लीजिए मोमेंट एरिया का,
मोमेंट एरिया का डायग्राम बना लीजिए, और फिर यदि आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे वो भी कुछ ऐसी आएगी, और आप जब इसका निकालोगे TAC, वहां से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, आप अपना डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। इसका मोमेंट एरिया डायग्राम ऐसा ऐसे बनेगा, और ये डिस्टेंस होगा PL/3। बना के देख लीजिए आप, दिस इज आवर पॉजिटिव मोमेंट एरिया डायग्राम। तो आप ऐसे मोमेंट एरिया डायग्राम इसको बना सकते हो, उसके हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये था मोमेंट एरिया डायग्राम से ही दूसरा क्वेश्चन हमारा। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसी से, थर्ड क्वेश्चन यदि बात करें, हमारे पास कैंटिलीवर गिवन रहता है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन if this is 2y and this is I and this is length L and this is length L, if a movement of m is applied at the free end, then you have been asked, if this is point A, B and C, find deflection at point C। आपसे बोला जाएगा आपको डिफ्लेक्शन बताना है पॉइंट C का। तो आप कैसे करोगे, मोमेंट एरिया डायग्राम कब वैलिड होता है, आप डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे इसकी। डिफ्लेक्टेड शेप जब बनाओगे आप, तो आपको इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसी मिलेगी, आपको इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसी मिलेगी। इसकी डिफ्लेक्टेड शेप ऐसी मिलेगी, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यदि ए पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये जीरो लोकेशन है जहां पे मतलब आप टेंजेंट मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास, दिस विल बी T टाइम्स ऑफ CA, दैट विल बी डिफ्लेक्शन। यदि T बोले हम, डिफ्लेक्शन T बोले तो CA, हमें मूवमेंट लेना है अबाउट पॉइंट C, और एरिया कहां से कहां लेना है, बिटवीन C एंड A। M/EI डायग्राम का एरिया बिटवीन C एंड A, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हमारे पास गिवन है अगेन कैंटिलीवर, आपको बोला गया है यहाँ पर मूवमेंट M है और यहाँ पर मूवमेंट M है, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इफ दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C, यू हैव बीन आस्क्ड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C अगेन। आपको C पे डिफ्लेक्शन दोबारा निकालना है, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। बस इस केस में आप कैसे मूव करोगे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कर सकते हो आप। इसमें आपको पहले मूवमेंट ट्रांसफर करना होगा, आपको पहले, या इसको आप कंजुगेट बीम मेथड से भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। यदि आपको कंजुगेट बीम मेथड पता है तो आप उससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इफ वी हैव अ मूवमेंट M here and movement M here, if we have given a value of movement M, if this is 2EI, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को, और दिस इज EI and this is also distance L/2, find the deflection at free end। हमें बताना है फ्री एंड के ऊपर डिफ्लेक्शन। इफ दिस इज A, B and C, A, B and C, आपके ऑप्शंस है, आप ट्राई कीजिए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ml² by 8EI, हमारा सेकंड ऑप्शन है ml² by 4EI, थर्ड इज ml² over 2EI, एंड फोर्थ वन इज 0। आपको बताना है आपका आंसर क्या आएगा, ट्राई कीजिए। तो हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। लोडिंग जो गिवन है, लोडिंग आपको गिवन है, एक्चुअली लोडिंग आपको ऐसे गिवन है, कुछ आपको लोडिंग यही लोडिंग लेके चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। यही लोडिंग लेके चलते हैं, आपको बतानी है डिफ्लेक्शन एट दी फ्री एंड, दैट इज पॉइंट C, A, B एंड C। तो कैसे सोल्व होगा ये कंजुगेट बीम से भी हो सकता है और मोमेंट एरिया थ्योरम से तो हो ही सकता है। तो मोमेंट एरिया थ्योरम से कैसे होगा, आप पहले ये लोड आपका यदि M है, इस M को जब इस पे ट्रांसफर करोगे आप, तो आपको नेट क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे नेट
मूवमेंट आपको 0 मिलेगा। और यदि आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखना चाहोगे तो आप डिफ्लेक्टेड शेप के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब एक और मूवमेंट जब आप इसको ट्रांसफर करोगे वापस, कैसे इसको ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो आप, तो आपको पता चलेगा डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसी आएगी, डिफ्लेक्टेड शेप आपको ऐसी मिलेगी। तो आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे? M/EI डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। M/EI डायग्राम कैसे बनेगा इसका? यदि आप इसका M/EI डायग्राम बनाओगे तो इसमें आपको पता है नेट जो शेयर है वो 0 रहेगा, क्योंकि कपल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और मूवमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर यदि मूवमेंट्स के लिए सोल्व, रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? 0, रिएक्शन 0। यदि मूवमेंट के लिए ट्राई करोगे तो मूवमेंट भी नहीं आएगा, ये भी 0। ओनली वी हैव मूवमेंट m एट द फ्री एंड and the moment m at the center. So we have, this is positive movement and this is also positive. So we will have m naught by EI and m naught by EI. And we have to find out the deflection at the free end. So area of this is m naught by EI into L by 2. And about, if we see, this will be our centroid and this distance is L by 4. If we multiply this L by 4, this will give us deflection at point C. ये आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू देगा पॉइंट C के ऊपर। आंसर क्या आएगा? m naught L square by 8। m naught, if this is m naught, ये आपका यदि m naught है, m मान लीजिए या m naught मान लीजिए, एक ही बात है। डिफ्लेक्शन क्या आएगा आपके पास? मेन आंसर ये है जो काम की चीज है, m naught L square by 8EI। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? A। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया है। तो ये था हमारा मूवमेंट एरिया थ्योरम से कुछ क्वेश्चन जो यूजुअली पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कंजुगेट बीम मेथड से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। कंजुगेट बीम मेथड में आपको सबसे पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। कंजुगेट बीम मेथड से यदि आपको क्वेश्चन करने हैं डिफ्लेक्शन के, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिकली मोमेंट एरिया मेथड जो है और कंजुगेट बीम मेथड है, उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मोमेंट एरिया मेथड में आप डिफ्लेक्टेड शेप से आप डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप निकालने की कोशिश करते हो डिफ्लेक्टेड शेप से। यहाँ पर आप कंजुगेट बीम बनाते हो। जैसे आपको यदि ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर प्रोब कैंटिलीवर बीम है आपके पास, या फिर फिक्स्ड बीम है, आप प्रोब कैंटिलीवर बीम लीजिए, ये आपके पास लोड है W, तो इसमें आपको रियल बीम को कंजुगेट बीम बनाना होता है। तो हमें रियल बीम पता है, यहाँ पर आपको कंजुगेट बीम बनाना होगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो है 0, और आपको ये भी पता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो corresponding to this deflection we have movement and corresponding to theta we have shear in the conjugate beam। तो आपको कंजुगेट बीम में भी मूवमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, और शेयर की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी सपोर्ट कंडीशन है जिसमें मूवमेंट भी 0 होता है और शेयर भी 0 होता है? वो है आपकी फ्री कंडीशन। मतलब कि कोई सपोर्ट ही नहीं हो तो आपकी ये कंडीशन बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सपोर्ट कंडीशन किस में कन्वर्ट होती है। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हमने अभी देखा फिक्स्ड सपोर्ट कंडीशन आपकी फ्री में कंसिडर करते हैं। सेकंड, यदि आपका हिंज है एंड हिंज, एक होता है बीच में जो बीम के जो बीच में हिंज होता है। इफ वी हैव अ हिंज इन द मिडल ऑफ द बीम, कंसिडर वी हैव थ्री सपोर्ट कंडीशन। This is the middle hinge. For middle hinge we know there is a theta value and delta will be equals to 0. We have theta value and delta equals to 0
corresponding to theta equal theta value we need to have value of v but movement equals to 0। हमारे पास v की वैल्यू होगी, मतलब क्या होगा उसका, v 0 के इक्वल नहीं होगा, v will be not equals to 0, theta will be not equals to 0 है, डेल्टा 0 होगा। तो आपको ऐसी सपोर्ट कंडीशन चाहिए जिसमें v 0 ना हो लेकिन मूवमेंट 0, तो वो होता है आपका इंटरनल हिंज, क्योंकि यहाँ पर आपको ये आपको रिएक्शन देगा, मूवमेंट नहीं देगा। तो एंड हिंज के लिए आपका सेम रहता है, लेकिन इंटरनल हिंज के लिए आपका जो कंजुगेट बीम में आएगा वो आपका खाली डॉट रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपका रोलर है, रोलर में क्या होता है, आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, और डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, मतलब डेल्टा रहता है। corresponding to theta equals to 0 we have shear which is also equals to 0 and moment is not equals to 0। तो shear किस में 0 रहेगा, इसी केस में 0 रहता है, क्योंकि यहाँ पे R रिएक्शन 0 होती है। तो आप इसका यदि बनाओगे कंजुगेट बीम, तो ये आपके कंजुगेट बीम के कुछ फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हमें रियल बीम गिवन है, इफ दिस इज हिंज, हियर वी हैव आल्सो हिंज, दिस इज सपोर्ट कंडीशन एंड दिस इज अवर फ्री कंडीशन, दिस इज नोन एज, ये आपको पता होगा, इसे बोलते हैं हम रिजिड लिंक, पता भी होना चाहिए आपको। ये रिजिड लिंक होता है जिसमें आप दोनों साइड हिंज होता है, आपका सेक्शन क्या होता है, हिंज होता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बनाना है कंजुगेट बीम, इस सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, आपको पता है फिक्स्ड एंड आपका क्या हो जाएगा, फ्री सपोर्ट कंडीशन। आपको गिवन है हिंजेस और ऊपर भी नीचे भी, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्टेड शेप मेंबर होता है, डेल्टा की वैल्यू आएगी, मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हियर वी हैव आल्सो थीटा की भी वैल्यू आएगी, तो थीटा भी आपको 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या देखोगे, मूवमेंट की वैल्यू, तो मूवमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, और सिमिलरली शेयर की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। तो कब होगा, जब आप इसको सपोर्ट कंडीशन दोगे इंटरनल हिंज की खाली हिंज सपोर्ट कंडीशन, और यहाँ पर हमने देखा इसके लिए हिंज आएगा और फ्री एंड के लिए फिक्स्ड एंड आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यदि ऑप्शंस होंगे तो उस ऑप्शंस में आपको ये आंसर चूज करना है। तो ये क्वेश्चन सीएससी का था, सिविल सर्विसेज का, प्रीवियस ईयर का। तो ये ऐसे हमने कंजुगेट बीम से क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्टली, आपको ऐसे सोल्व करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं सब। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको कंजुगेट बीम बनानी आनी चाहिए, मेन बात वो है। देन यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। कंजुगेट बीम बनाने के बाद आप उसका मूवमेंट डायग्राम बनाइए। यदि सपोर्ट कंडीशन के ऊपर जो शेयर होता है, यदि जो सपोर्ट कंडीशन हमारे पास, यदि हमने मूवमेंट डायग्राम बना दिया, कुछ मान लेते हैं वो ऐसा आया मूवमेंट डायग्राम ऐसा आया हमारे पास, लीनियर मूवमेंट डायग्राम। तो जो सपोर्ट कंडीशन होगी तो वही हमको थीटा की वैल्यू देगा, स्लोप की वैल्यू देगा। जो रिएक्शन आएगा यहाँ पे, रिएक्शन जो आएगा वो हमें इक्वल्स टू स्लोप होगा इन कंजुगेट बीम। क्या बोला मैंने, रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्लोप in case of conjugate beam, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये एक चीज ये याद रखिए, यदि ये लीनियर होता है तो आपको आसान रहता है कंजुगेट बीम यूज करना। लीनियर कब होगा, जब आपकी लोडिंग क्या होगी, 0 डिग्री, मतलब कि पॉइंट लोड जब आपके पास होगा। अदरवाइज ये हमेशा हमें, यदि यूडीएल आपके पास, तो आपको इस सेकंड ऑर्डर का मिलेगा। हमें पता है यूडीएल से जो पैराबोलिक ग्राफ मिलता है, हमें पैराबोलिक मूवमेंट डायग्राम मिलेगा, तो उसका आप एरिया निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा।
एज कंपेयर टू लीनियर डायग्राम। तो कंजुगेट बीम मेथड कहाँ यूज करोगे, जहां पर आपका 0 डिग्री लोडिंग होगी, मतलब कि पॉइंट लोड होगा, वहीं पर ही कंजुगेट बीम मेथड आपको यूज करना है टू फाइंड आउट द स्लोप डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा आज का 7th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन ये है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम और आपको ये कॉलम्स गिवन है, ये कॉलम्स गिवन है, रिजिड कॉलम्स, rigid columns. If this length is L, this length is L and this is also L. Now we have been asked if we have also given a point load P here, if this is, let's say Q, if this is Q, आपको ये जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं ये रिजिड सेक्शंस हैं, रिजिड सेक्शन है। तो आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मूवमेंट एट पॉइंट P, मूवमेंट एट पॉइंट Q। P आपका लोड है एट पॉइंट Q, आपको मूवमेंट बताना है एट पॉइंट Q, मूवमेंट की वैल्यू Q के ऊपर। ट्राई कीजिए, ऑप्शन देता हूं मैं आपको इजी करने के लिए। इसके ऑप्शन है आपके PL/2, PL/4, PL/4, PL/6 एंड PL/8, PL/8। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिए। तो सॉल्यूशन बताता हूं मैं अब आपको। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि ये लोड लग रहा है, P लोड लग रहा है हमारे पास, तो इसको यदि हम ऐसे दिखाएं, इफ वी हैव दिस P लोड एंड if we consider there is a reaction R over the rigid section, rigid section से क्या मतलब है, आपका जो ये कुछ ना कुछ रिएक्शन लेगा आपके पास, तो ये ऐसे R रिएक्शन हम इसको शो कर सकते हैं। आप FF फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, उसकी हेल्प से आप चीजों को आसान कर सकते हैं। तो आपको पता है ये आपका P लग जाएगा ऊपर वाली बीम के ऊपर, ऊपर वाली बीम के ऊपर, इस वाली बीम के ऊपर हमें बताना है मूवमेंट एट पॉइंट Q। तो आपको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो इसको, आप डायरेक्टली इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो, आपको पता रहेगा P माइनस R LQ/48 EI, LQ/48 EI, बिकॉज दिस इज द डिफ्लेक्शन। इफ दिस इज, ऊपर से लोड P था हमारे पास और नीचे से रिएक्शन R था, तो ये ऊपर से मैंने लोड दिखा रखा है P और नीचे से रिएक्शन R, तो आपको P माइनस R LQ/48 EI का नेट डिफ्लेक्शन मिलेगा यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन मिलेगा जो कि सेम होगा, जितना आप इसको पुश करोगे उतना ही ये नीचे भी पुश होगा, तो ये भी कितना होगा R LQ/48 EI, R LQ/48 EI। आप जब इसको सोल्व करोगे P = 2R, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास P/2 = R। तो जब आप इसको R की वैल्यू निकाल लोगे, तो अब आपको R की वैल्यू पता है, डेट इज P/2। तो नेट जो लोड होगा एट सेंटर, डेट इज P/2 एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस एज L। तो आप मूवमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस इज अवर P/4 एंड मूवमेंट विल बी इक्वल टू PL/4। मूवमेंट डायरेक्टली आपका PL/4 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारे पास 12 डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस इज 2L, बस ये ध्यान रखना ये डिस्टेंस आपके पास 2L है ना कि L। तो क्योंकि यदि L होगा तो फर्दर हाफ हो जाएगा, तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है। तो ये था हमारे पास 8th क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है दो सिंपली सपोर्टेड बीम, आपको ये गिवन है, if this is A, this is point B and this is also another beam CD. Now here a rigid section is here
having weight W, and these are flexible in nature. AB and CD are flexible in nature, having length L each. You have to find out the deflection value. Find deflection at point B and D or at free end. Find deflection at free end. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे ये टू हैंड है और इससे ज्वाइन कर रखा है ये रिजिड ब्लॉक। तो जब आप रिजिड ब्लॉक इस पे ज्वाइन करोगे तो ये बॉडी नीचे डिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ पर स्लोप जीरो रहेगा। ये मेरा कैंटिलीवर है, तो आप ये जब डिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा, आपका स्लोप इधर जीरो रहेगा। तो ये कैसे डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे जब आप इसकी। ट्राई कीजिए आप पहले, डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा। इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी स्लोप जीरो होगा, तो ये कुछ ऐसी डिफ्लेक्टेड शेप मिलेगी आपको। तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, डेल्टा, एंड ये भी कितना डिफ्लेक्ट हुआ, डेल्टा। आपको ये डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल बीम को स्टडी करते हैं। जब इंडिविजुअल कैंटिलीवर को स्टडी करोगे आप, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, और इफ यू सी देयर वी हैव अ डेल्टा, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, आपको पता चलेगा यहाँ पर मूवमेंट कितना आएगा ड्यू टू डिफ्लेक्शन डेल्टा। मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूले बताए थे डिफ्लेक्शन के, उसी से हम मूवमेंट निकालेंगे 6ci डेल्टा बाई एल स्क्वायर। These are our movement given to us. Similarly, in CD also we have this deflection, and again we have movement equals to 6ci delta by L square and 6ci delta by L square. 6ci delta by L square. Now you have given a reaction weight given आपको रिजिड ब्लॉक का W। यदि आपके पास if you have this reaction R1 here and this reaction R2 here, then you can say by the compatibility R1 plus R2 will be equals to W। हमारे पास compatibility इक्वेशन क्या आएगी, R1 plus R2 equals to W। और R1 कैसे निकालोगे, आपके पास मूवमेंट गिवन है तो आप इजिली निकाल सकते हो R1 को। इसके अबाउट एट पॉइंट ए, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए आप जीरो करके निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 12ei डेल्टा बाई एल क्यूब। आप ऐसे समझ लीजिए। तो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो यहाँ पर अपवर्ड और यहाँ पर रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर भी रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा आपको। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी वैल्यू होगी उसकी भी, 12ei डेल्टा बाई एल क्यूब। तो आपको नेट जो वेट मिलेगा, इफ दिस इज R1 दिस इज R2, दैट इज 24ei डेल्टा बाई एल क्यूब। तो आप यहाँ से डेल्टा निकाल लीजिए, क्या आएगा आंसर आएगा आपका, आंसर इज WL क्यूब ओवर 24ei, WL क्यूब ओवर 24ei। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो आपने देखा, ये अब हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें बस आपको ध्यान क्या दे रहे हैं, आपको ध्यान देना है आपको कंपैटिबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश करें। आपको कंपैटिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है जिससे आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल पाओ। ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया है क्वेश्चन भी। सिविल सर्विसेज से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी तक ESC में पूछे नहीं गए हैं। तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस दैट द सिविल सर्विसेज क्वेश्चन में आस्क्ड इन द engineering services examination in the future years. So you must do this question from the civil services point of civil services also, so that you can easily attempt the engineering service examination question. So we have now 9th question. That is related to strain energy. strain energy से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। आपको डेफिनेटली 100% जो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी से। ये मैं जब देख रहा था प्रीवियस ईयर्स, देन आई फाइंड आउट दैट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रेन एनर्जी आस्क्ड एवरी ईयर
from the strain energy. You can consider one question from it. Definitely one question आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा, one question आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से करना है। स्ट्रेन एनर्जी हमें पता है, एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग हमें पता है, एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन। यदि मैं ब्रीफिंग करके बताऊं तो यदि ये एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड है, ये एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग है हमारे पास, ये एनर्जी ड्यू टू टॉर्शन है, तो आपको इनकी हेल्प से ही एनर्जी का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली यहाँ पर आपको बेंडिंग से पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल, आपको यूडीएल गिवन है, आपको पूछा जाएगा एनर्जी बताइए, एनर्जी बताइए ड्यू टू बेंडिंग, आपसे बेंडिंग के कारण एनर्जी पूछ लेंगे। या फिर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड गिवन है, पॉइंट लोड गिवन है, आपसे पूछा जाएगा एनर्जी बताइए, एनर्जी की वैल्यू बताइए। या फिर आपके पास कैंटिलीवर बीम है, ये पॉइंट लोड है P एट द एंड हैविंग लेंथ दिस L, दिस इज आल्सो लेंथ L, दिस इज आल्सो लेंथ L। नाउ यू हैव बीन अगेन आस्क्ड एनर्जी की वैल्यू बताइए, तो कैसे निकलेगी सभी में, m² L/2EI। आपको करना क्या है, खाली m को निकालना है। कैसे निकालोगे, u = mx² dx/2EI। आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करना है और एनर्जी निकालनी है। तो इसका एडवांस क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको रिलेट करके पूछ लें, आपसे पूछा जाए u ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड हैविंग यूनिट लोड एंड u ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपसे वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं इसका, फॉर क्लैरिटी हम एक क्वेश्चन इसका देख भी लेते हैं। जैसे यही ले लेते हैं, हमारे पास गिवन है लेंथ L एंड यूनिट लोड इज अप्लाइड हियर। आपको यूनिट लोड गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो आपको बताइए रिएक्शन क्या आएगी, 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2। तो आपको रिएक्शन की वैल्यू पता है। यहाँ पर आप जब मूवमेंट निकालोगे एट x डिस्टेंस, mx की वैल्यू आएगी आपके पास x/2 and for calculation of u we know that mx² dx/2EI. Now this x is valid from 0 to L/2 because this distance is L/2, because we cannot say here, because आपके पास कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप निकाल तो यहाँ भी सकते हो तो, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप इसका लेंथ 0 to L/2 डिसाइड करोगे, 0 से L/2। आप इसको वैसे अलग अलग करके भी कर सकते हो चार्ट बना के, लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप EI अलग लिखो, आप E की वैल्यू अलग, I की वैल्यू अलग, लेंथ ऑफ रेंज ऑफ जो है आपकी वो अलग लिखो। जैसे अब इस केस में we know 0 to L/2 x/2 whole square dx/2EI. This is our energy, this is our energy. Now this can be done twice because here also we have x/2 movement here, x/2 movement here, and if we add them again we will have this formula and this will be, we can write directly twice. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 2 times of x²/4 time into dx integration from 0 to L/2 divided by 2EI। आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास मिलेगा x3 divided by 12 from 0 to L/2 1/EI। आप जब पुट करोगे तो इसको लिख सकते हो L/L³/2³ into 12 into 1/EI into 1/EI। तो आपके पास क्या मिलेगा, L³ into 8 times of 12, 8 times of 12 is 96, 8 times of 12 is equals to 96। तो आपके पास आंसर आ जाएगा L³/96 EI। दिस इज आवर आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आपको लग रहा होगा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा पेपर में, बट ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको जैसे ही पेपर में देखोगे यू कैन इजिली सोल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज आस्क्ड एवरी ईयर। यू मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। स्ट्रेन एनर्जी क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है हर साल, तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्री के मार्क्स आपको दिला रहा है। तो ये था स्ट्रेन एनर्जी से कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। जैसे एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, दो बार पूछा गया है। जैसे आपको ये यहां पर P, दिस इज योर डिस्टेंस 2a, दिस लोड इज अगेन P, दिस डिस्टेंस इज A, इफ आई से दिस A पॉइंट, B पॉइंट, C एंड अगेन से A, 2 पॉइंट आपको A बोले हैं मैंने। आपके पास एक ऐसा सेक्शन गिवन है, आपको लोड लगाया जा रहा है साइड से, आपको पूछा जाएगा फाइंड हाउ मच क्लोजर द 2 पॉइंट गेट व्हेन वी अप्लाई अ लोड P एट द फ्री एंड। तो आपको बताना है कि ये कितने क्लोज आपके पास आ जाएंगे, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, find deflection at free end when both point come close to each other, when a point comes close to each other, आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू बतानी है। और बताया गया आपको ये रिजिड सेक्शन, BC सेक्शन को आपको रिजिड बताया गया है। ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर एक्सियल जो डिफॉर्मेशन है वो कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर यदि ये अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास P लोड, दिस इज P लोड एंड हियर वी हैव मोमेंट P टाइम्स ऑफ 2a, देन इफ वी सी हियर दिस रिजिड सेक्शन, नाउ दिस विल बी अगेन P load acting here, now movement is also there, this is in anti-clockwise direction and this will be in clockwise direction, and again we can transfer this, like again we have this P, this will be your P 2a value, P times of 2a, and this length is again 2a and this is a, this is P times of 2a. Now you have to find out the deflection at by which these 2 points come close to each other. तो आपको डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ से कैसे, आपको पता है जब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये सेक्शन जो है, जो आपका बॉटम सेक्शन है BC, वो टर्न हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास मूवमेंट लग रहे हैं। ड्यू टू द मूवमेंट ये आपकी शेप कुछ ऐसे लेगा, जिसके कारण आपको यहाँ पर थीटा मिलेगा, आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिलेगी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी ml/2ei, थीटा की वैल्यू होगी ml/2ei, और मूवमेंट आपको पता है P टाइम्स ऑफ 2a, तो ये आपके पास आ गई PL/EI, PL²/EI। तो थीटा आपको मिल गया यहाँ से। जैसे ही आपको थीटा मिलेगा तो ये फर्दर यदि हम ऊपर वाले लोड को कंसीडर ना करें तो ये आपको जो थीटा मिला है ये भी वैल्यू क्या होगी, थीटा ही होगी। यदि मैं इसको सेपरेटली दिखाऊं, आपको यदि मैं इसको सेपरेटली दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे क्योंकि डिफ्लेक्ट कर गया है तो आपका ये जो सेक्शन होंगे वो रिजिड बॉडी मोशन करेंगे, तो ये भी आपका क्या होगा थीटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा थीटा टाइम्स 2a, और सिमिलरली यहाँ भी थीटा टाइम्स 2a, तो आपका नेट डिस्टेंस कितना हो गया 4a टाइम्स थीटा, जिसके कारण वो पास आ गए हैं ड्यू टू कर्वेचर इन द BC सेक्शन। अब आप इसको कैंटिलीवर की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो कैंटिलीवर का आपको पता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू कैंटिलीवर इज गिवन एज PL3/3ei, L आपके पास 2a एंड दिस इज Q/3ei। सिमिलरली उस साइड से भी तो ये हो जाएगा आपके पास 2 ऑफ PL3/3ei, L हमारे पास है 2a, तो डेल्टा नेट कितना मिलेगा आपको, डेल्टा नेट मिलेगा डेल्टा C प्लस 4a टाइम्स ऑफ थीटा,
तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ईएससी में। अब सिमिलरली इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमें गिवन है एक ऐसा सेक्शन और गिवन है, ऐसा सेक्शन आपको गिवन रहेगा। अब पूछा जाएगा ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे आपको कि कितने क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे या फार अवे चले जाएंगे, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हैं तो दूर चले जाएंगे, और यदि अपोजिट लोड लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लोड लगाते हैं, तो ये आपके पास आ जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करना आपको सिर्फ इसमें है मूवमेंट और फोर्सेस को ध्यान रख के आप डायरेक्टली डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का 10th क्वेश्चन। एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए, एक मेरे पास बोनस क्वेश्चन भी आपके लिए गेट से पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो आप, यदि नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, मैं आपको हिंट दे दूंगा उस क्वेश्चन का कैसे करना है। ये आपको बोनस क्वेश्चन है, ये आपका बोनस क्वेश्चन आपको गिवन है सेमी सर्कल सेक्शन हैविंग लोड P एट द एंड। P लोड आपको एंड पे गिवन है, दिस रेडियस इज R एंड दिस इज 90 डिग्री, you have given this as 90 degree, this is also R. What you have to tell is if this is point A and this is B, आपको फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B in vertical direction and horizontal direction। डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है? वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि इसका सेक्शन में आपको यदि डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसी मिलेगी। तो ये अपनी वर्टिकल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है बाय डेल्टा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल से डिस्प्लेस हुआ है बाय डेल्टा हॉरिजॉन्टल। आपको दोनों डिफ्लेक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है ये बेंडिंग से निकालनी है डिफ्लेक्शन, तो बेंडिंग से निकालनी है तो आप किसी सेक्शन के ऊपर, लेट से दिस सेक्शन, मैं आपको हिंट कर रहा हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन। वी नो ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस विल बी R, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इस सेक्शन में और इस सेक्शन में, ये एग्जेजरेट कर रखा मैंने यहाँ पर आपको, लेकिन ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो दिस डिस्टेंस इज R। आप ये मूवमेंट यदि आप मैं इसको दिखाऊं, मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस P है आपका, तो ये भी P होगा। तो यहाँ पर मूवमेंट आएगा कुछ, कितना आएगा? P इंटू लीवर आर्म, ये हमारे पास मान लेते हैं X, तो ये आपको देगा मूवमेंट P टाइम्स X, तो ये आपका हो गया P टाइम्स X। और X की वैल्यू क्या होगी यदि देखोगे तो, क्योंकि ये ऐसे होगा हमारे पास, if this is theta then how much is this? We know this distance is R, तो आपके पास ये कितना मिलेगा? R माइनस ये डिस्टेंस तो मिलेगा आपको R माइनस R कोस थीटा, सॉरी ये डिस्टेंस मिलेगा R कोस थीटा, डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, कोस थीटा निकाल लो यहाँ से आप, तो आपको ये R कोस थीटा मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? यदि ये R साइन थीटा है तो ये आपके पास R साइन थीटा मिलेगा। तो x की वैल्यू आपके पास R साइन थीटा, और मूवमेंट कितना बन गया? P टाइम्स ऑफ R साइन थीटा। आप यहाँ से एनर्जी निकाल लीजिए, और एनर्जी के निकालने के बाद डेल U बाई डेल R जो होगा आपके पास, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 1 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू UDL से, 1 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू UDL, दैट इज यूनिट लोड मेथड से आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। आपको U निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप डायरेक्टली डेल्टा निकालोगे। U आपको क्या होगा यहाँ पे, जैसे इसको देखोगे तो आपके पास आएगा mm d थीटा बाई EI। हमारे पास जो मूवमेंट के कारण जो फॉर्मूला रहता है वो होता है mm d थीटा बाई EI, आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक बोनस क्वेश्चन मुझे और ध्यान आया है, वो क्या है? आपके पास एक बीम गिवन रहेगी और टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब आपको टेम्परेचर अबोव सेक्शन कुछ हो रहे हैं और बॉटम सेक्शन पे कुछ हो रहे हैं। ये सिंपली स्पॉटेड बीम है, आपको पूछा जाएगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। इफ दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, आपको सेंटर के ऊपर डिफ्लेक्शन की वैल्यू बतानी है। आपको ये डेप्थ गिवन रहेगी D, अल्फा गिवन रहेगा आपको डेल्टा C की वैल्यू निकालनी है। ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसका आपको मेथड नहीं बता रहा कैसे होएगा। मेथड मैंने हिंट कर दिया आपको कैसे होएगा,
लेकिन ट्राई कीजिए, कन्वेंशनल क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग दीज क्वेश्चन फॉर यू गाइस, you have to try them yourself. So best of luck and thank you for watching this video.